We are in the Mir Behri area of Srinagar. While we have shown you visuals and reports from the ground zero from areas of Srinagar, Budgam, but this area is special simply because this is very close, in fact located right besides the Dal Lake, the famous Dal Lake, and right now I'm in an open shikara. Now this shikara is usually used to transport vegetables, and early morning these people, I'll ask Tariq to show you this side while we are moving through one of the small streams, or should I say tributaries of the Dal, but on this side you will see a lot of vegetable growth. Now people of this area are vegetable farmers, and early morning the famous vegetable market of Dal Lake, it's these people who bring their produce and sell it there. Now it's election, and this is special because this is the typical rural setting where you have a polling booth, temporary polling booths that have been created. You have the shikara, you have the vegetables, and you also have a goat. So you have almost everything that signifies, or that really is a symbol of rural life. Now I'll try to safely deboard this shikara, which is not an easy thing to do, but I have managed to do it. So this is Behri area. This is on the Nishad side on the banks of Dal Lake, and this is the temporary voting center that has been created here. Since morning this area has seen massive rush of the people, and right now women, after finishing their daily course, are come out and will vote. Now there are at least 4 polling stations here, and while we talk of smart city, we talk of urban life or facilities of development, but once you come to this side you realize that still a lot needs to be done when it comes to development, when it comes to basics of development like sadak, bijli, pani, and also employment. Though this is a different world. Why I say it? Because as I told you, it has different ways in which people live their life. It's a completely different stories to say if you compare it to a Lal Chowk or to civil lines, and these people really have a hard life in many ways. Now we'll try to speak to some of these ladies, though we know already seeing the camera they're looking on the other side, so that tells you they won't speak. But as you can see, this is one polling center, and then you have the other polling center on the other side. So this is a different world, and these are elections, 2024 assembly elections, and we came here to showcase this life, this different aspect, the different shade of the elections of 2024. And these are makeshift polling centers that have been created and have been stopped rightly from going inside. So this is the other side, and while brisk polling has been reported from Gandarbal, from Budgam, but Srinagar has been slow, which is a surprise because everyone after South Kashmir set the tone in the first phase. Everyone is expecting that there will be massive turnout, though it's still, there's still 3-4 hours as far as the final bell of closure bell of the voting for the day. But it's been around 30% if you talk of complete Srinagar, though there is still hope that this voting percentage will increase. हमने सिटी में जो है काफ़ी कवर किया, लेकिन जब यहाँ आए, यहाँ दुनिया आप लोगों की दूसरी है. यहाँ पानी है आसपास, सब्जी आप लोग उगाते हैं, लेकिन काफ़ी डेवलपमेंटल डेफिसिट दिखा. यहाँ डेवलपमेंट वैसे पहुंची नहीं है. मुद्दे बताइए कि किन चीज़ों को लेके वोट पड़ा है यहाँ. मुद्दा इस वक्त जो पिछली सरकार थी, उन्होंने मीर बहरी के लिए कुछ नहीं किया. चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, PDP हो, कोई भी हो, उन्होंने कुछ नहीं किया है मीर बहरी के लिए. लेकिन इस वक्त जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये खाली जुनैद साहब का है, जुनैद अहमद मुत्तू. ये जो गाड़ियाँ आप देख रहे हैं, यहाँ टांगा भी नहीं पहुँचता था, लेकिन जुनैद साहब जब से मेयर बन गया उसने ये काम किया है. बस किसी भी MLA ने कुछ नहीं किया. खाली जब नेशनल हुकूमत आई उस वक्त आगा रोहला और आगा सैयद महमूद, उसने उस वक्त इसको मेटल बिछाई, लेकिन मैग्नेटाइजेशन नहीं की. फिर जब जुनैद मुत्तू साहब मेयर बन गए तो हम मीर बहरी के लोग उसके पास गए, उन्होंने ये मैग्नेटाइजेशन किया है इसको. और क्या मसले हैं यहाँ के, और बताइए. कोई मसला आप देखिए ना, आपको दिखाई दे रहे हैं मसला यहाँ पर नहीं है. यहाँ पर हर कोई मसला है.
अब एक मसला है, जैसे कि आप यहाँ पर कोई मकान बनाता है, लौड़ा वाले आ लेते तो गिराते हैं। अब ये यहाँ पर जिसको 4 भाई है, वो कितने साल एक मकान में रहेंगे। जब भी कोई तामीर करने की कोशिश कर रहा है तो उसको लौड़ा वाले आते हैं, गिराते हैं। हमने इनको बोला था अगर आपको रेपुटेशन करना है तो हमें कीजिए, तो हम तैयार हैं, वो भी नहीं करते हैं। जितने भी लोग यहाँ से रेपुटेशन हुए हैं, भीमना रचार, आप वहाँ जाओ, वो कहते हैं कि हम मीर बहरी में ही अच्छे थे, बेहतर थे मीर बहरी में ही। लेकिन आप देखिए डल की हालात कैसी है, ये झील डल है, आप देखिए, ये देखिए पूरा गंदा हो गया है, कितना साफ करेंगे हम। यहाँ लोगों को क्या है, ज्यादा सब्जी वब्जी यहाँ उगाते हैं? यहाँ सब सब्जी जो भी मार्केट में होता है ना सब्जी, वो मीर बहरी की है, यहाँ की सब्जी है। लेकिन यहाँ से घर चलाती है लोग। सब्जी और क्या करेंगे, हम तो मुलाजिम नहीं है। ओ वो कहाँ है, यहाँ पर जो भी पढ़ता है, यहाँ पर नौकरियों का नाम ही नहीं है। क्योंकि ये जो इस वक्त स्कूल है, यहाँ पर पैदल जाना पड़ता था पहले पैदल जाना पड़ते हैं। यहाँ पर अब जब जुनेद साहब आए ना मेयर, तो आज गाड़ियाँ बच्चों को उठाती है, अपने अपने स्कूल में ले जाती है। हाँ, सड़क वड़क बनती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इतना किया है, नीचे जो है वो बर्बाद किया। जी सर। आप बताइए, आपने वोट डाला तो क्या मुद्दे दिमाग में थे, क्या लगता है किस चीज को बदलने के लिए आपने वोट डाला? यहाँ के हालात सबसे बदतर है। ये श्रीनगर का हार्ट है डल झील। यहाँ गवर्नमेंट कोई काम नहीं करती है। जो ये रोड बना है जुनैद मुत्तू ने बनाया है। यहाँ गवर्नमेंट आती है, पूरे बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं करते हैं। वोट ले जाते हैं और चले जाते हैं। यहाँ कभी बाइकआउट वाइकआउट नहीं था, यहाँ हमेशा वोट हाँ, हमेशा डालते हैं वोट। हमेशा डालते। तो कभी नहीं हल हुआ आपके मसले? नहीं, जो किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। खाली जुनैद मुत्तू ने। तो और क्या दिक्कतें हैं? मुद्दत, अब आप सब्जी यहाँ उगाते, सेंटर है ना, कुछ है ना, हाई स्कूल है, कुछ भी नहीं है। तो जो पिछली 5-6 साल से जो एक गवर्नर की सरकार रही है, लेफ्टिनेंट गवर्नर बीजेपी की, कुछ यहाँ बदला नहीं? हाँ, नहीं, थोड़ा काम हुआ है जो उसी की सरकार में हुआ है। फुटपाथ बनाए, यहाँ ये रोड बनाए, मैकडम। आप बताइए, आप यहीं रहते हैं? जी सर, माय नेम इज़ मुश्ताक वाट। तो हमारी पहले तो होम मिनिस्टर से ही एक गुजारिश है कि उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं उनके कि उन्होंने यहाँ पर असेंबली के चुनाव किए। तो इस हुकूमत हर जगह पे ज़रूरी है। तो हम डल झील में रहते हैं, जैसे कि आप गाड़ी निकालोगे उसके लिए आपको बैंक फाइनेंस देती है, आपको 30,000 में 40 लाख की गाड़ी मिलेगी। हमें यहाँ पर किस्त लानी है 2.5 लाख की, उसके लिए हमके बाय हैंड पैसे देने हैं। यही मुश्किलात है। रोजगार के लिए आपको लोन नहीं मिलता? कुछ नहीं, कोई तो ऐसे नहीं, कहाँ मिलेगा लोन? हम 30,000 में 30 लाख की गाड़ी ले सकते हैं। इसीलिए हम होम मिनिस्टर से ये गुजारिश करते हैं कि चाहे हमें जो किश्ती भी लेने हो उसके लिए हमें बैंक एक सब्सिडी दे, लोन दे हमारे लिए, ताकि रोजगार मतलब इजी बने। जैसे कि 2-3 साल हो गए यहाँ पर टूरिज्म को एक बाहर मिल गया, यहाँ पर टूरिज्म आ रहा है। जैसे कि आप लाल चौक में देखोगे डेवलपमेंट हो गई, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो एनसी के यहाँ पर जो कीड़ा है ना पुराना, वो उसके लिए कोई सैनिटाइज और करना है। इकट्ठे तो खत्म नहीं होगा वो जो उन्होंने बर्बादी की यहाँ पर। हम पहले 40 साल या 50 साल हजरतबल कॉन्स्टिट्यूंसी में डल झील पड़ता था, 40 साल कभी 1 रुपया नहीं लगा, 1 रुपया। तो हम यही सेंट्रल गवर्नमेंट से ये डिमांड करते हैं कि हमारे रोजगार के लिए आप वसीले बनाओ, ताकि हमारे लिए कोई गुलामी ना कर सके किसी जगह। तो आज खुश हैं आप कि कम से कम लोकल इलेक्शन हुए, आपका रिप्रेजेंटेटिव आएगा? इंशाल्लाह तो यही उम्मीद रहेगी। इसके लिए तो हम सेंटर के एक बार नहीं लाख बार शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाल्लाह तो अब काम होगा। सबसे बड़ा काम है बेरोजगारी, और डल झील में ये जो है ना इर्द गिर्द थोड़ी सी गंदगी है, ये इसको तो खाली डल वाला साफ करेगा। ये तो यहाँ पर मशीन लाते हैं 4 लाख 5 करोड़ 10 करोड़ की, ये सब जैसे हम दाढ़ी काटते हैं ये वैसा ही है। डल वाले को पता है कि डल को कैसे चलाना है, डल को कैसे साफ रखना है। मशीन से डल साफ नहीं होगा। ये कोई गोवा का समंदर नहीं है जिसको कि हम मशीन लाएंगे अभी मतलब जहाज लगाना है। लेकिन
हमें बाय हैंड ऐसे घास निकालना है, बाय हैंड किसी जगह पे डालना है। बताइए, आपने तो कई बार वोट डाला होगा, बीच में कभी वोट नहीं डाला या हमेशा से आप वोट डाल रहे हैं? हाँ, मैंने हर 5-5 साल के बाद वोट डालता है हम। तो वोट से बदलाव आया कभी? आपका वोट कभी इस्तेमाल? भी नहीं, यहाँ पर हजरत बल कॉन्स्टिट्यूंसी से हम वोट डालते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पर मोहम्मद सईद आखुन को रखा है, वो आते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, बाद में वो मुंह ही नहीं दिखाते हैं। तो बड़े क्या मुद्दे हैं? अब एक बड़ा मुद्दा आपको बोलूंगा, क्या सबसे बड़ा चीज जो चुभती है आपको? हाँ, बड़ा मुद्दा ये है कि गवर्नमेंट ने डल को यहाँ से रिहेबिलिटेट करना है। फिर जब हम उनके पास जाते हैं वहाँ कुछ काम नहीं होता है। हाँ, होता है मगर किसके जरिए? दलालों के जरिए। जब हम पैसे देंगे, अच्छा, पैसों की करप्शन है। हाँ, करप्शन है, करप्शन के बगैर काम नहीं। यहाँ खत्म नहीं हुआ। जो डल यहाँ पर है, ये पानी हम पीते भी हैं, उससे भी नहाते हैं। ये सिर्फ डल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ने खराब कर दिया है। जब ऐसा यहाँ पर यहाँ के जो ये नौजवान है, कुछ नौजवान वो है जो आज मजदूरी पर मजबूर हो गए। हाँ, रोजगार नहीं है। इन्होंने हमसे वादा किया कि हम रोजगार देंगे, सड़कें देंगे, अस्पताल देंगे, डिस्पेंसरियाँ देंगे, स्कूल देंगे, मगर उसके अगेंस्ट उसने कुछ नहीं किया। फिर क्या हम करते हैं? सिर्फ हम मजदूरी करते हैं इस डाल को। डाल में अगर ये इनको 50% काम करते हैं, ये 25 ही करते हैं तो निकालते हैं। पैसा 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 खाते हैं, मतलब करप्शन। करप्शन ज्यादा है यहाँ पर। यहाँ पर उन्होंने वर्क सुपरवाइजर रखा है, वो भी किसी बाइक वाले को, किसी टांगे वाले को लाते हैं तो खींचते हैं फोटो, बेचते हैं उधर, फिर पैसे निकालते हैं। वहाँ पर आगे, हमसे आगे बहुत बड़ा झील है, 1 करोड़ से ज्यादा भी उन्होंने लगाया उस पर पैसे। आज वो वही है जो पहले। कुछ नहीं है। आप मेरे साथ आओ, मैं दिखाऊंगा आपको। आप कुछ भी दलालों के बगैर यहाँ पर कुछ भी नहीं। हाँ, हमारे एक फाइल पड़ा वहाँ लावड़ा ऑफिस में, मगर दलालों के बगैर नहीं चला। मेरा मकान 2014 में फ्लड की वजह से डैमेज हुआ, अभी तक फैसला नहीं हुआ। मैंने सब कुछ डाल दिया फाइल में, आधार कार्ड सब कुछ, आधार कार्ड, इलेक्शन सब कुछ डाल, मैंने राशन कार्ड भी, कुछ नहीं। सिर्फ पैसे के बगैर नहीं काम हुआ। इतना करप्शन सिर्फ जिले डाल में, लावड़ा ऑफिस में 3 करोड़ रुपए या 2030 में लगा दिया है। फिर 3 करोड़, फिर क्या करा? मैं भी काम करा वहाँ, उस टाइम मैं भी काम करा। मशीन उसे हटाना नीचे से, उन्होंने बोला द्रोत लगा दो, जो गांव वालों है ना, वही काट दो, वही काट दो। मेरे सुपरवाइजर खड़ा था, जेई खड़ा था वहाँ, उन्होंने जेब में रखा पैसा, आधा उधर आधा इधर। दूसरा था 2024 में यहाँ से काम कर रहा है, यहाँ जी 4 करोड़ रुपए, फिर वापस आया ऐसे ही। करप्शन बहुत है। करप्शन जितना भी, सबसे बड़ा करप्शन लावड़ा। मगर जिनको वजह से आज इलेक्शन की बात कर रहा है, जितने भी हुर्रियत वाले पहले पाकिस्तान ढूंढ रहा है, ऐसे ऐसे आजादी चाहिए वो चाहिए, आज फिर पॉलिटिक्स में आएंगे। जिन लोगों ने मरवा दिया मकबरों में साया, उसकी वजह से अपने बच्चे कहाँ फॉरेन कंट्री में पढ़ रहा है। बच्चे कौन मरा? गरीब को लोग मरा, पाकिस्तान रुआ। पहले ठीक था कश्मीर, उससे पहले आजादी के बगैर, जिस टाइम आजादी डाल रहा हो, आजादी दे दो, उस टाइम कश्मीर ठीक है, शांतिपूर्ण है। आज आप देखते हो जमात इस्लामी भी इलेक्शन लड़ रहा है। यही ना बात है। मैं मोदी से गुजारिश कर रहा हूँ, सलाब को पीछे डाल दो, जिनने कश्मीर बर्बाद किया। आप बोल रहे हो कि उन्होंने कैसे उनको इजाजत दे रहे इलेक्शन लड़ने? हाँ, ये करप्शन, उन्होंने कश्मीर बर्बाद किया। अगर कश्मीर आजादी उन्होंने चाहते आजादी, फिर इसमें क्यों डाल दिया इलेक्शन में? यही बात है कि उन गरीबों को बच्चों मकबर में डाल दिया, अपने बच्चे फॉरेन कंट्री में पढ़ते हैं। मोदी मैं गुजारिश करूंगा सबसे, इनको सलाखों के पीछे डालो, जितने भी हुर्रियत वाले हैं, सिर्फ डरते हैं ऊपर वाले के, बस। With camp person Tariq Lone, Meet for Srinagar for India Today.